تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں گھریلو ملازماؤں کی بڑی وارداتوں کا سلسلہ جاری۔ سال 2026 کے ابتدائی دنوں میں ہی 5 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہو گئیں۔ بہادر آباد محمد علی سوسائٹی میں اس سال کی سب سے بڑی واردات میں 100 تولے سونے کے قریب چوری ہو گیا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ خوف کے باعث ماسیوں کو رکھنا بند کر دیا ہے۔ پولیس نے گھریلو ملازمین کے تھانوں میں رجسٹریشن کرانے کی اپیل کر دی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیا سال نئے مسائل، شہری گھروں میں بھی غیر محفوظ، گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں بھی ہاتھ کی صفائی دکھانے لگیں۔ سال 2026 کے ابتدائی دنوں میں ہی 5 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ بہادر آباد، نیو ٹاؤن، گزری، بورڈ بیسن اور ڈیفینس میں گھروں کا صفایا۔ بہادر آباد محمد علی سوسائٹی میں سال کی سب سے بڑی واردات، گھریلو ملازمائیں 100 تولے کے قریب سونا لوٹ کر فرار۔ بہادر آباد چار مینار چورنگی پر بھی گھریلو ملازماؤں نے 16 تولے سے زائد سونا چوری کیا۔ گھریلو ملازموں کی جانب سے چوریوں نے خواتین کو دوہری اذیت میں مبتلا کر دیا۔ کام کے لیے ملازم رکھیں تو کیسے سر پکڑ لیا، کہتی ہیں خوف کے باعث ماسیوں کو رکھنا بند کر دیا۔ زیادہ ہو رہی ہے چوری، اس لیے ہم لوگ نہیں رکھتے، خود ہی تو گھروں میں کام خود ہی کر لیتی ہیں؟ جی خود ہی کر۔ کم سے کم ایسا ہو کہ آپ ان کو جانتے ہو اچھی طریقے سے، ان کا بیک گراؤنڈ جانتے ہو، ان کا NIC ہو، ویریفیکیشن ہونی چاہیے لازمی۔ ملازماؤں کی چوریوں کی واردات سے سروس پرووائڈر ایجنسیاں بھی نالا، SOP سخت کر دیں۔ ماسیوں کی نوکریوں پر رکھنے سے قبل پولیس ویریفیکیشن۔ مینیجر انیس کا کہنا ہے کہ کام پر رکھنے والی ماسیوں کا شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کے ساتھ ان کا گھر بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ایک گھر کے 5-5 افراد بھی کام کر رہے ہیں، تو اب ان کا گھر وغیرہ چیک اینڈ بیلنس کر کے آگے ریکمینڈ کرتے ہیں، جیسے ان کے گھر کی جو ویریفیکیشن کا گھر دیکھنا، ان کے جو لینڈ لارڈ کا نمبرز ہے، ان کے جو ریفرنس نمبر ہے، ان کے جو گارنٹر، ان کے ID کارڈ اوریجنل وغیرہ سب اپنے پاس باؤنڈ کرتے ہیں، تو ایک سیکورٹی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اور پلس ہم کلائنٹس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے نیئر بائی تھانے سے آپ نے بھی ویریفیکیشن وغیرہ لازمی کروانی ہے۔ CPLC کے ڈپٹی چیف شبر ملک کا کہنا ہے کہ واردات کرنے والی ماسیاں زیادہ تر منہ ڈھانپ کر رکھتی ہیں۔ شہری اپنے ملازمین کی رجسٹریشن لازمی کرائیں۔ چور ہے اور یہ اپنا منہ ڈھانپ کے آتی ہیں، منہ ڈھانپ کے جاتی ہیں۔ یہ کیمروں سے بھی تھوڑی سی احتیاط برتتی ہیں، اپنی ٹائمنگ بھی ایسی لیتی ہیں جس میں ان کو ایڈوانٹیج ہو۔ اور کراچی کے جو پورش علاقے ہیں، چاہے وہ PCHS ہے، کارساز ہے، ہل پارک ہے، ڈیفنس ہے، کلفٹن ہے، یہی ان کا ٹارگٹ ایریا ہے 99%، اور یہیں یہ وارداتیں کرتے ہیں۔ پولیس نے شہریوں کو اپنے گھریلو ملازمین کی تھانوں میں رجسٹریشن کرانے کی اپیل کر دی۔ SSP ساؤتھ محضور علی کہتے ہیں کہ شہری گھریلو ملازمین رکھتے وقت ہر طرح سے تصدیق کریں۔ ملازمین کی رجسٹریشن اپنے علاقے کے تھانے میں کروا سکتے ہیں۔ ماسی ہائر کرنے سے پہلے اگر آپ یہ ویریفائی کرا لیں کہ اس ماسی کا کوئی پرانا کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ کم از کم اس ماسی کو آپ تھانے پہ رجسٹر کرا دیں، ان کے جو ہے قوائف اور ان کے CNIC، تاکہ وہ ماسی کو بھی یہ علم ہو کہ جی میرا ریکارڈ جو ہے پولیس کے پاس موجود ہے۔ شہر قائد میں نئے سال کے آغاز پر ہی وارداتوں کی بڑھتی تعداد سے شہری خوفزدہ ہیں اور حکومت سے سخت اقدامات کے منتظر ہیں۔ سال 2025 میں 200 سے زائد گھریلو ملازموں کی وارداتیں رپورٹ ہوئی تھیں۔ کراچی میں گیس کا بدترین بحران، شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی فراہمی متاثر، گھروں میں چولہے ٹھنڈے تو صنعتوں میں کام بھی منجمد۔ شکوہ کیا، شہر میں اربوں روپے خرچ کر کے نئی گیس لائنیں ڈالنے کے باوجود پریشر نہ ہونے کے برابر ہے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ کراچی میں سردی بڑھتے ہی گیس غائب، شہر میں گیس بحران نے زندگی اجیرن کر دی۔ شہر میں گیس پریشر کم اور بند ہونے سے گھریلو اور کمرشل صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ صبح کے اوقات میں دفاتر جانے والے شہری اور اسکول جانے والے بچوں کو ناشتے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ گیس کا تو ہمارے علاقے میں بھی بہت مسئلہ ہے۔ یہ قصبہ کالونی کٹی پہاڑی ناظم آباد کے ایریا کہلاتا ہے، اس میں جو ہے نا بنارس ہو گیا، ناظم آباد، یہ پورا جو ہے نا یہاں پہ گیس جو ہے نا رات کو 8 بجے سے چلی جاتی ہے۔ کھانے کے لیے اگر ہوٹل میں بھی جائے تو تندور پہ وہاں پہ بھی رش لگا ہوتا ہے، نہیں ہے گیس، وہاں پہ بہت بڑا مشکلات ہے۔ اورنگی ٹون میں رہتے ہیں، گیس ہوتا ہی نہیں ہے۔ صبح رات کو جاتا ہے 8 بجے، پھر صبح کے 9 بجے آتا ہے گیس۔ بچے بھی لکڑیوں سے ہم لوگ جلاتے ہیں، سب کچھ اپنا مجبوری میں۔ لیاری سے لالو کھیت، ملیر سے کیماڑی، لائن زیریا سے لانڈی، چولہے ٹھنڈے اور گڈاپ گارڈن، بورا پیر، اختر کالونی، چنیسر گوٹ، اورنگی میں بھی گیس بندش کی شکایات۔ سعود آباد، نارتھ کراچی، PIB کالونی، ناظم آباد، شادمان ٹاؤن، سر سید ٹاؤن، کاٹھور میں بھی گیس کی بندش۔ PIB کالونی کے اندر گیس تو بالکل آتا ہی نہیں ہے، آتا بھی ہے تو اتنے معمولی سے جو ہے نا چولہے جلتے ہیں، پریشر ہی نہیں ہوتا بالکل بھی۔ آتا ہے تو صبح 6 بجے آتا ہے تو 9 بجے بند کر دیتے ہیں، 10 بجے آتا ہے تو پھر 2 بجے بند کر دیتے ہیں۔
बहुत मसले मसाइल हो गए हैं गैस के ऊपर। मलीर का इलाका है, गैस जब से सर्दी स्टार्ट हुई है गैस तो नाम की नहीं है, आती है कभी चली जाती है फिर आती है, रात में शाम के टाइम तो गैस का नामो निशान ही नहीं है, दोपहर में अगर आ गई तो आ गई वरना फिर बैठे रहो। क्या मुश्किल होती है? दूसरी जानिब गैस बंदिश के बायस सनतों का पहिया भी रुक गया। जरा के मुताबिक 2 गैस फील्ड बंद होने से SSGC को 45 MMCFD गैस की कमी का सामना है। एक गैस फील्ड बंद होने से 30 और दूसरी गैस फील्ड बंद होने से 15 MMCFD गैस बंद है। शहरियों ने दुहाई दी है कि शहर में अरबों रुपए खर्च करके नई गैस लाइनें डालने के बावजूद प्रेशर ना होने के बराबर है। हुकूमत और सुई गैस इंतजामिया को चाहिए कि मामले को हंगामी बुनियादों पर हल करने के लिए इकदाम उठाएं। आपको बताएं, कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन के शोबे WTM की कारकर्दगी एक बार फिर सवालिया निशान बन गई है। गार्डन रोड से गुजरने वाली 24 इंच कतर की पानी की लाइन इतवार की शब लीक हो गई। ताहम कई घंटे गुजरने के बावजूद लाइन की मरम्मत ना हो सकी और ना ही पानी की सप्लाई बंद की जा सकी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में हंगामी इकदामात के फुकदान की वाज़ेह मिसाल गार्डन रोड पर सामने आ गई। इतवार की शब 24 इंच कतर की पानी की लाइन लीक हो गई, मगर घंटों गुजरने के बावजूद मुतासिरा लाइन की वाटर सप्लाई बंद न की जा सकी। लाखों गैलन कीमती पानी बहता हुआ गार्डन रोड से एमेजिना रोड तक जा पहुंचा, जिसके बाइस सड़क के दोनों ट्रैक दरिया का मंजर पेश करने लगे। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर और शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। बड़ी परेशानी है, ट्रैफिक इतनी रश होती है यहाँ पर, इतनी होती है कि मैं क्या बताऊँ कि हमें गुजरना बड़ा मुश्किल पड़ता है यहाँ। सब इंजीनियर मोहम्मद काशिफ का कहना था कि पानी बंद करने के लिए वक्त दरकार होता है, अकब से सप्लाई बंद करवानी पड़ती है। अफसरान लाइन की सप्लाई बंद कराने में मसरूफ हैं। सप्लाई बंद होते ही मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा, जो आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सर असल में पानी को बंद करने के लिए जो है ना थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये पीछे से पूरी सप्लाई बंद कराई जाती है, उसके लिए हमने कह दिया था। कल से चीफ इंजीनियर हमारे आफ्ताब आलम चांडियो साहब, अनवर मेमन साहब जो हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, एक्सीएन साहब कामिल उस्मानी और तमाम जो हमारे हुकाम बाला हैं वो सब जो है इसके ऊपर ऑन बोर्ड थे। अभी भी सब जो है पीछे इसी के ऊपर लगे हुए हैं। मशीनरी अभी थोड़ी देर में आ रही है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा थोड़ी देर में काम शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह इसको रात तक रिपेयर कर लेंगे। वाटर कॉरपोरेशन का अमला और मशीनरी मुतासिरा मकाम पर तो पहुँच गई, ताहम ताखीर के बाइस इदारे की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठने लगे हैं। शहरियों ने लाइन लीकेज बरवक्त बंद न होने और कीमती पानी के जिया पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि वाटर कॉरपोरेशन हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी और मौसर इकदाम करे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D3 में 2 बरस गुजरने के बावजूद सीवरेज का मसला हल नहीं हो सका। सहबा अख्तर रोड पर जमा गंदा पानी झील जैसा मंजर पेश कर रहा है और शहरी शदीद अजियत में मुब्तला है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D3 के सहबा अख्तर रोड के हैं, जहां गुज़िश्ता 2 बरस से नाकारा सीवरेज निज़ाम शहरियों के लिए मुस्तकिल मसला बना हुआ है। सड़क पर जमा गंदा पानी न सिर्फ बदबू फैला रहा है बल्कि पूरा इलाका झील का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि महकमा पानी और सफाई को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज कराई गई, मगर कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। रिहायशी दुकानदार और रोजाना गुजरने वाले मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हैं। बिल्कुल जमे गफीर होता है, यहाँ ट्रैफिक जाम होता है मेरे भाई, बड़ी परेशानी होती है। बाइकों वाले भी गिर जाते हैं, यहाँ पे कोई खुदाई भी हुई है, वहाँ पे गाड़ियों को जो है ना निकलने में मुश्किल हो रही है। बाइकें भी गिरती हैं, औरतें भी कई दफ़ा मैंने देखा है गिरी हैं यहाँ पे, तो बड़े मुश्किल में है मेरे भाई। रोड पर गंदे पानी के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। मकीनों के मुताबिक राहगीर खुसूसन खवातीन के फिसल कर गिरने के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं, जबकि ताफुन और मच्छरों की बहुतात से बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। तो ये है कि भाई ये मसला एक बहुत ही पुराना मसला है, जिसको इतना जो है ना वो बड़े पैमाने पर नहीं लिया जा सका अभी तक। जबकि आप पीछे देखेंगे बड़े बड़े टावर बन गए, लेकिन अभी तक ये पुरानी लाइन का काम नहीं हो सका, जबकि इस पे काम होना बहुत ज़रूरी है। वो मस्जिद में आने वाले जो बच्चे हैं जामा में पढ़ते हैं, और इसके अलावा जो नमाजी हैं उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। रिहायशियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि सहबा अख्तर रोड पर 2 बरस से जारी सीवरेज के इस संगीन मसले का फौरी और मुस्तकिल हल निकाला जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
मुल्क भर में धुंध ने रेलवे का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर कर दिया है। रेल का पहिया सुस्त होने से मुसाफिर अजियत का शिकार हैं। मिल्लत, फरीद एक्सप्रेस, सखर एक्सप्रेस 5 से 8 घंटे लेट हैं। कोचेस की कम तादाद के बायस खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस, बोलान मेल और शाह हुसैन एक्सप्रेस को मुअत्तल किया गया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। धुंध ने रेलवे की आमद और रफ्त का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। कराची से रवाना होने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस, इल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, खैबर मिल, सखर एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस, पाक बिजनेस और मिल्लत एक्सप्रेस 5 से 8 घंटे ताख़ीर का शिकार। आज 3 ट्रेनें खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस, बोलान मील और शाह हुसैन एक्सप्रेस को मुअत्तल कर दिया गया। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों का सर्दी में बुरा हाल। मुसाफिरों ने शिकवा किया है कि रेलवे के निज़ाम को दुरुस्त करने की अशद ज़रूरत है। पहली तो बात है ये बर्तों का निज़ाम सही करें, इन्फॉर्मेशन सिस्टम करें, ऑनलाइन सिस्टम करें। अगर ये ऑनलाइन जिस तरह करेंगे जैसे कि एयर टिकटिंग का है तो ये भी हो सकती है, क्योंकि बिज़नेस क्लास में आपने देखा है कि बिज़नेस क्लास में जितनी भी यानी क्लास जारी होती है तो वो टाइम की पंचुअल होती है। अब धुन एक कुदरती नेचुरल फैक्टर वो अलग है कि पंजाब की साइड जाके जो है वो धुन में यानी आए जिसकी वजह से लेट हो। उसके अलावा यही है कि खिड़कियाँ जो होती हैं सर्दी में वो नहीं होता है सफ़र, तो फिर कोई अच्छी गाड़ी ढूंढते हैं तो उसके किराए ज़्यादा हैं। मुसाफिरों का कहना है कि महकमा रेलवे किराए में तो इजाफा कर रहा है, सहूलियात भी इसी मुताबिक बढ़ाई जाएं। सर्दी में स्टेशनों पर इंतजार की अजियत से बचाया जाए। कैमरामैन इब्राहिम के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। कराची के आवाम के लिए खुशखबरी है। शहर कायद में आटे का बहरान टल गया। सीनियर वाइस चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स फैसल अनीस ने सिंध हुकूमत की 2.5 लाख मेट्रिक टन गंदम रिलीज करने के फैसले को खुशाइन करार दे दिया है। बोले, सप्लाई बेहतर हुई तो रमजान में आवाम को सस्ता आटा दस्तयाब होगा। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में आटे का बहरान टल गया। इस मरतबा रमजान में शहरियों को सस्ता आटा मिलेगा। सिंध हुकूमत ने 2.5 लाख मेट्रिक टन गंदम रिलीज कर दी। ओपन मार्केट में 10,700 रुपए फी मन तक पहुँचने वाली गंदम सरकारी गंदम रिलीज होने के बाद 8,000 रुपए फी मन में दस्तयाब है। सीनियर वाइस चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज फैसल अनीस ने कहा कि हुकूमत के गंदम रिलीज करने के इकदाम से मार्केट में इस्तेकाम पैदा हुआ और सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। करंटली जो गंदम के स्टॉक्स थे मार्केट के अंदर और फ्लोर मिल्स वालों के पास वो काफ़ी लो हो चुके थे, जिसके अंदर सिंध गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है और है ना वो अपने स्टॉक्स लेके आ रही हैं और मार्केट जंप कर गई थी ऊपर 10,700 पे पर 100 kg, जो कि नीचे आके गवर्नमेंट अब आपको 8,000 रुपये में दे रही है पर 100 kg, जिसकी वजह से इंशाल्लाह फ्लावर पे भी आपको इम्पैक्ट दिखेगा और आपको रिटेल में और होलसेल में ये इम्पैक्ट कुछ दिनों में 2-4 दिनों में इंशाल्लाह दिखना शुरू हो जाएगा। सीनियर वाइस चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स के मुताबिक अवाम को रमजानुल मुबारक में सस्ता आटा दस्तयाब होगा, जिससे शहरियों को महंगाई में रिलीफ मिलेगा। रमज़ान की भी आमद है तो गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है इसके ऊपर, और वो अगर फ्लावर को और गंदम को टाइमली है ना सप्लाई चेन में दे देंगे, क्योंकि अभी हमारी रमज़ान की जो परचेजिंग है और रमज़ान की जो चीज़ें सप्लाई चेन में जारी होती हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। तो वीट भी एक स्टेपल फूड है हमारा और रेगुलर हम कंज्यूम करते हैं, तो उसकी भी बिल्कुल ज़रूरत होती है और यही इंशाल्लाह सप्लाई चेन में जाके और आप लोगों को नॉर्मल प्राइसेस पे इंशाल्लाह मिलेंगी। हुकूमत की बर्बक गंदम रिलीज करने से शहर में आटे के बहरान का खदशा भी टल गया। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाजरीन, सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूब उज़्ज़मा ने दावा किया है कि सिंध में दीगर सूबों से सस्ता आटा फरोख्त हो रहा है। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि महकमा खुराक में करप्शन है। 3,65,000 गंदम की बोरियां खराब हो गई या ज़ाया हो गई। तफसीलात आज जमाली की रिपोर्ट में देखिए। 3,65,000 गंदम की बोरियां ज़मीन खा गई या आसमान। सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूब उज़्ज़मा का महकमे में करप्शन का एतराफ़। सिंध में गंदम की 3,65,000 बोरियां कहाँ गईं? करप्शन की नज़र हो गई, चूहे खा गए या ख़राब हो गईं? वज़ीर खुराक मखदूम महबूब उज़्ज़मा ने एतराफ़ किया कि महकमे में कई अफसरान करप्शन में मुलविस हैं। फ्लोर मिल्स 9,500 रुपये गंदम फ़ी बोरी देने के बजाय 8,000 रुपये गंदम बोरी फराहम कर रहे हैं। 85,000 अरब रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। सिंध में आटा सस्ता है, रमज़ान से कबल मज़ीद सस्ता करना चाहते हैं। और आपने रमज़ान की हवाले से बात की तो हमारी प्राइस फिक्सेशन कमेटी है जो काम करी, इस वक्त भी सबसे लोएस्ट प्राइस है हमारे आटे की, और रमज़ान में तो उसको हमारा मकसद ही ये है कि लोएस्ट तरीन हम ले जाएं और आपको एक प्राइस फिक्स करके दिखाएंगे। 85 बिलियन की जब सब्सिडी है हमारी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हीट स्टॉक्स की असल प्राइस कितनी, ये ट्रिलियंस में है, ये खरबों रुपए की गंदम है जो हमारे स्टॉक्स में है। सिंध फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल जुनैद अजीज़ ने दावा किया कि पूरे मुल्क की निस्बत सिंध में 30 रुपये फ़ी किलो आटा सस्ता है।
मार्केट में आटा महंगा फरोख्त होने पर कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। पाकिस्तान में पूरे ये सिंध को जो है क्रेडिट जाता है सिंध गवर्नमेंट को कि सिंध में पूरे में आटे के रेट अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 20 से 25 रुपये, अगर मैं कहीं गलती पे ना हूँ तो शायद 30 रुपये भी कम है। तो ये 30 रुपये पर केजी 25 रुपये कम होना ये एक बड़ा एडवांटेज है। मखदूम महबूब जमा ने दावा किया कि इस वक्त फ्लोर मिल्स पर 113 रुपये आटा किलोग्राम और रिटेल में 118 रुपये फ़ी किलोग्राम फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन शाहजेब रज़ा के साथ आजिज़ जमाली, कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मंदी की लपेट में आ गया है। कारोबार का मंदी के साथ इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 2025 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,82,384 इंडेक्स पर बंद हुआ। माहिरीन ने जियोपॉलिटिकल हालात और प्रॉफिट टेकिंग को वजह करार दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार आज मंदी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। 100 इंडेक्स 2025 पॉइंट्स कम हो गया। इंडेक्स 1,82,384 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,84,439 और कम तरीन सतह 1,82,303 रही, जबकि दिन भर 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी देखी गई। माहिरीन ने कहा कि आलमी जियोपॉलिटिकल हालात और सरमायाकारों की प्रॉफिट टेक्निक के बायस मार्केट पर दबाव रहा। अमेरिका और वेनेजुएला दूसरी जगहों पर भी, जैसे ग्रीन वैली, ये सारी जगहों पे जो हमले की बात हो रही है या जो बातचीत चल रही है, इसकी भी थोड़ा सा असर नज़र आ रहे हैं। दूसरे एक कि मार्केट जो अपने पीक पे थी तो लोग अपना जो डेटा जो अपना माल है वो बेच के थोड़ा सा साइड लाइन हो रहे हैं, ताकि कोई अच्छी खबर आए या कोई और अच्छी चीज़ आ जाए तो और अच्छा हो जाए। माहिरीन कहते हैं कि मार्केट की इस मंदी ने सरमायाकारों में मोहतात रवैया पैदा कर दिया है। कैमरामैन इब्राहिम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी के लिए 12 फरवरी को धरना देने का ऐलान। सपला के मरकजी सदर प्रोफेसर मुनव्वर अब्बास ने कहा है कि सिंध हुकूमत कॉलेजेस को अहमियत नहीं दे रही। कराची समेत सिंध के तमाम अजला में कॉलेजेस की सूरत हाल अबतर है। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन मुतालबात की मंजूरी के लिए डट गई। 5 ईयर फार्मूला की फिल 4 मंजूरी। हज़ारों खाली असामियों पर लेक्चरर्स की DPC बोर्ड 1 और 2 का इनेकाद किया जाए। कॉलेजेस में गैर तदरीसी अमले की कमी को फौरी दूर किया जाए। SM आर्ट्स कॉलेज में सपला के मरकजी सदर प्रोफेसर मुनव्वर अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमारा सोर्स स्ट्रक्चर तबाहाली का शिकार है। कॉलेजेस के अंदर लेबोरेटरीज की सूरत हाल नाकस हो गई। सिंध के कॉलेजेस हुकूमत सिंध की अदम तवज्जुही के सबब रोज़ बरोज़ खंडर बनते जा रहे हैं। क्लास रूम्स में बच्चों के लिए टूटी हुई बेंचेस, स्वीपर्स की कमी के सबब सफाई के नाकिस सूरत हाल, फर्नीचर की कमी, लाइब्रेरीज और लेबॉर्ट्रीज़ की ख़राब सूरत हाल, सोने पर सुहागा। प्रोफेसर मुनव्वर अब्बास ने शिकवा किया कि आज तक सिंध टेक्स्ट बोर्ड ने IT की किताब जारी नहीं की। 15 जनवरी से एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। 12 फरवरी को बिलावल हाउस के बाहर धरना देंगे। कंप्यूटराइज दौर में और IT के दौर में इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस के लिए आज तक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की कोई किताब शाया नहीं हो सकी। 9 फरवरी को सूबा भर के तमाम कॉलेजेस में तालीमी व तदरीसी अमल का बाइकॉट किया जाएगा। 12 फरवरी को बिलावल हाउस के बाहर सिंध भर के तमाम असातिज़ा धरना देंगे और अपने मुतालबात तक जो है वो वहाँ पर धरने में बैठे रहेंगे। सपला रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि 5 ईयर फार्मूला पर अमल दरामद किया जाए। तमाम कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स को तैनात करके गैर तदरीसी अमल को पूरा किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सालाना सिंपोजियम का इनेकाद। सिंपोजियम शोबा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की जानिब से किया गया। चेयरपर्सन डॉक्टर सिद्रा ने कहा कि सिंपोजियम का मकसद अकेडमी और इंडस्ट्री के दरमियान रवाबित बढ़ाना है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सालाना सिंपोजियम शोबा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की जानिब से सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। चेयरपर्सन सिद्रा आबिद ने कहा सिंपोजियम का मकसद एकेडमी और इंडस्ट्री के दरमियान रवाबित बढ़ाना है। इस
کا اصل مقصد یہ ہے کہ اکیڈمیا اور انڈسٹری کے بیچ میں جو ایک گیپ کریٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جب ہمارا گریجویٹ انڈسٹری میں جاتا ہے اور اسے جاب میں پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کے ریپرزینٹیٹیوز ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور انڈر گریڈ لیول پہ ہی ہم بچے کو ان پرابلمس میں بہتری لے کے آئیں تاکہ وہ ایک مؤثر کردار ثابت کر سکے پاکستان کی معیشت میں۔ جامعہ کراچی شعبہ بایو میڈیکل انجینئرنگ کی اسسٹنٹ پروفیسر نے کہا، سمپوزیم نے طلبہ کو دور جدید کے نکات سے متعارف کروایا ہے، یہ فیلڈ اپنی مثال آپ ہے۔ اس ٹائپ کے ایونٹس اس لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ ہمیشہ سے اکیڈمیا ہی گریٹ سورس رہی ہے نیو آئیڈیاز کا، نیو ریسرچز کا، اور اس کے بغیر جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجی فلرش نہیں کر سکتی پاکستان میں جب تک ہم نیو آئیڈیاز کو اور اکیڈمیا کو جو ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ نہ لنک کریں۔ طلبہ نے کہا کہ سمپوزیم میں AR کے استعمال سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ My supervisor, she encouraged me to present my project here. So not in terms of only industry and university gaps, but also in terms of empowering the students and supporting students to present their research at an undergrad level. These kind of conferences and symposiums are very important. بندے آ کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے بہت ہی کام آتا ہے، اور ہم یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آرگنائز کرایا اور ہمیں بہت فائدہ ہوگا اس کا۔ I think this is a very good innovative step towards meeting the educational things and towards the market, because the new students should know what's happening in the market, because usually the students don't know about the real time market activity which happening in the health care sector. سمپوزیم میں مختلف شعبوں کے طلبہ و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ مین عمران AK کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ نیوز بلیٹن سے فلمہ کے لیے اتنا۔